Okay, guys, so let's start. Today's lecture consists of conversion from three normal form to the fourth normal form and resolving the multi-value dependencies. Previously, agar aap, if you remember that in this lecture we have discussed about three normal form, first normal form, second normal form and third normal form. बेटा ये वाली स्लाइड आपको शो हो रही है बेटा ये दूसरी स्लाइड शो हो रही है आपको so over here थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा दूं कि फर्स्ट नंबर फॉर्म में हमारी जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके अंदर नो रिपीटेटिंग ग्रुप्स होनी चाहिए और उसको प्राइमरी की जो है आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ठीक है। इन द सेकंड नंबर फॉर्म the table must be in first normal form and there should not be partial dependencies, and in third normal form the table should be in second normal form and there are no transitive dependency, and BCNF जो है वो भी basically third normal form का ही part है, so I'm not covering BCNF the in our lecture, it's not that important, लेकिन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो आज हम करेंगे, which is the table must be in third normal form and there should not be any independent multi-value dependencies। ठीक है। So for the fourth normal form is a normal form used in database normalization introduced by Ronald Fagan in 1977. Fourth normal form is the next level of normalization after 3NF, whereas the second, third, and BCNF are concerned with the functional dependencies. Fourth normal form is concerned with a more general type of dependency known as a multi-value dependencies. A table is in 4NF if and only if for every one of its non-trivial multi-value dependencies X multi-determines Y। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये एरो दिख रहा है, ये एरो डबल एरो आपको दिख रहा है। जो डबल एरो का मतलब है X जो है एक से ज्यादा Y की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है। तो रिकॉल इन अ फंक्शनल डिपेंडेंसी कि हमारे पास डोमेन है, डोमेन के अंदर X की वैल्यूज होंगी, A B या C जो भी है, हमारे पास उसकी करस्पॉन्डिंग Y की वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल ओवर है रेंज उसकी है 4Q एंड डॉलर, तो हर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ X वी हैव अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Y इन द रेंज। ये दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी कि भाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ X वी कैन डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Y फॉर its dependent variable, as we can recall that if X uniquely determines Y, then Y is functionally dependent on X. You may recall math the terms domain and range. The domain is a set of all the values possible of X and the range is a set of all possible values of Y. The relation is a function because each of the elements of X maps exactly to one element of Y, जिसको हम कहते हैं X determines Y। अब इसमें और फंक्शनल डिपेंडेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। A functional dependency is a special case of multi-value dependency. In a functional dependency, X determines Y, where if X determines exactly one value of Y, not more than one. While in multi-value dependency, X determines more than one value of Y. सिर्फ ये डिफरेंस है मल्टी-वैल्यू डिपेंडेंसी और फंक्शनल वैल्यू डिपेंडेंसी। भाई फंक्शनल में क्या है कि X जो है एग्जैक्टली एक वैल्यू को डिटरमाइन करता है, लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में अगर हमारे पास X जो है एक से ज्यादा Y की वैल्यूज को डिटरमाइन करे तो हम उसको कहेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, और इस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को हम रिमूव करेंगे by converting it into the fourth normal form। Over here if we can say that we have employee X and we have a dependent value of Y, so for X we have multiple values of Y कि स्मिथ जो डिटरमाइन कर रहा है एना को और जॉन को, जॉन्स जो है डिटरमाइन कर रहा है लीला को या लाइला को और अल्सा को, और कूपर जो है वो क्रिस को डिटरमाइन कर रहा है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि
जो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वी शुड हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई। हो सकता है टेबल के अंदर एक या दो या एक से ज्यादा एक्स हो जो मल्टी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो, लेकिन एक भी हो सकता है जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू डिटरमाइन कर रहा हो। हम आगे जाके इस एग्जांपल में देखते हैं। तो इसका फार्मूला जो है वो बताने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल बता दूं कि ये एग्जांपल है ड्रिंकर्स के नाम से एक टेबल है जिसके अंदर ये 4 कॉलम्स हैं, नेम, एड्रेस, फोन्स और बियर्स लाइट। हम ये कह सकते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नेम मल्टी डिटरमाइंस फोन। ये जो दो एरोज आपको दिख रहे हैं, या हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो है हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, दोनों सिंबल के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर आप इसको एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये नेम मल्टी डिटरमाइंस फोन्स इफ ड्रिंकर हैज टू टपल्स। दो तीन ट्रिक्स मैं आपको बता दूं कि मल्टी वैल्यू डिटरमाइन तभी हो सकती है जब हमारे पास एक टेबल के अंदर कंपोजिट की हो और वो कंपोजिट की जो है मोर देन 2 कॉलम्स के ऊपर जो है वो बेस करती है। यानी कि अगर एक टेबल के अंदर कंपोजिट की जो है वो 3 कॉलम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करेंगी ही नहीं। इन दिस एग्जांपल जो हम ये करें नेम, फोन्स और बियर लाइट्स, यानी इस टेबल के अंदर ये नेम और एड्रेस और बियर लाइट्स ये तीनों कंबाइन होके कंपोजिट की बन रही है यहाँ पे। तो ये कह रहा है अगर नेम जो है मल्टी डिटरमाइंस फोन करता हो, फॉर एग्जांपल स्यू जो है वो एक्स है और फोन जो है वाई है, यानी कि स्यू के सामने वाई की एक वैल्यू भी हो और स्यू के सामने वाई की दूसरी वैल्यू भी हो और उससे करेस्पॉन्डिंग बियर्स लिंक की एक वैल्यू हो और बियर्स लाइक की दूसरी वैल्यू। अगर ये दोनों रोज एग्जिस्ट करती हैं, इट मस्ट आल्सो हैव द सेम टपल्स विद द फोन्स कंपोनेंट स्वेप्ड। कि इसी टेबल के अंदर ये दूसरी रोज भी होने चाहिए जिसमें फोन के जो कंपोनेंट हैं वो स्वैप होने चाहिए। कैसे? यानी कि ये दो रोज ये आपको सिमिलरली यहाँ पे दिख रहे होंगे, सिर्फ P1 का जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो जो B1 के करस्पॉन्डिंग है, वो P1 का कंपोनेंट यहाँ पे B2 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और P2 का कंपोनेंट जो कि B2 के करस्पॉन्डिंग है वो यहाँ पे B1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। We must check the condition for all pairs of tuples that agree on name, not just one pair। यानी कि अगर हमें कोई इस तरह का पेयर मिल जाए तो हमें इस तरह का पेयर भी इसमें होना चाहिए उसी टेबल के अंदर। अगर उस तरह का पेयर नहीं अवेलेबल, यानी कि हमें मल्टीपल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। इसको जो है इसमें देखते हैं। Tuples implied by name multi-determines phones if we have tuples स्यू P1 B1 और स्यू P2 B2, तो जो नीचे वाली हमारे पास दो टेबल्स है वो भी इसके अंदर होनी चाहिए कि स्यू P2 B1 और स्यू P1 B2, यानी कि हम इसको क्रॉस कर दें, या P1 इधर आ जाए P2 इधर आ जाए। ठीक है, देन दीज टपल मस्ट आल्सो बी इन द रिलेशन। तो ये वाली दो जो टपल्स हैं वो इसके अंदर रिलेशन के अंदर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो हमारे पास मल्टीपल डिटरमाइन नहीं एग्जिस्ट नहीं होती, और जब वो एग्जिस्ट नहीं होती तो फिर हम जो है उसको फोर्थ थ्योरम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक्स मल्टी डिटरमाइंस होल्ड्स in a relation R if whenever we have two tuples of R that agree in all the attributes of X, then we can swap their Y components and get two new tuples that are also in R। यानी कि अगर एक रिलेशन के अंदर R के अंदर हमें दो टपल्स हैं जो कि X और Y के एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करती हैं मल्टी डिटरमाइंस के रिलेशन में, तो अगर हम y की वैल्यू स्वैप कर दें तो जो दो न्यू टर्म्स होंगी, टू न्यू रोज होंगी, वो इसी के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। इसका फार्मूला है कि x मल्टी डिटरमाइंस y इंप्लाइज दैट कि हमारे पास x y और z एक ये टपल अगर हो और x y प्राइम और z प्राइम ये अगर टपल एग्जिस्ट करती हो, तो हमारे पास उसी रिलेशन के अंदर x
वाई प्राइम जेड और एक्स वाई जेड प्राइम, ये दोनों होने चाहिए। ये जो प्राइम जो यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू जो यहाँ पे रखी हुई है y प्राइम, ये वैल्यू इस y से मुख्तलिफ होगी, और ये जो z प्राइम की वैल्यू है इस z से जो है वो मुख्तलिफ होगी। यानी कि इस टेबल के अंदर ये x है, ये y है और ये z है। तो ये x है, ये y प्राइम है और ये z प्राइम है। y प्राइम क्यों? क्योंकि p2 जो है वो y से मुख्तलिफ है। z प्राइम क्यों? जो कि इस z से मुख्तलिफ है। अगर ये दोनों रोज एग्जिस्ट करती हैं तो क्या कह रहा है कि x y प्राइम z, यानी कि हमारे पास x y प्राइम क्या है इसके अंदर? ये वाली p2 ये होनी चाहिए, और ये z होनी चाहिए। z की वैल्यू क्या है? p1। और दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? x y और z प्राइम, यानी कि x वही, y जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है p1, और z प्राइम ये b2 की वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि इस रिलेशन के अंदर हमारे पास x y z y प्राइम और z प्राइम present occurrences of attributes of x y z, x determines y means x y z and x y prime z prime belongs to R where, अच्छा यहाँ पे जो y है, ये जो इक्वल का साइन दिया हुआ है, बेसिकली इक्वल का साइन जो है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसके अंदर होना चाहिए सॉरी, ये गलत दिया हुआ। यहाँ पे जो इक्वल का साइन है ये इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉट इक्वल टू। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको ये रहा, वर y डज नॉट इक्वल टू y प्राइम। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट एवरी एम्प्लॉय नोज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल एज सेट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सच नॉलेज इज टिपिकली इंडिपेंडेंट। अब एक टेबल हमारे पास, एम्प्लॉय नेम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये समझें कि ये 3NF के बाद कन्वर्ट होकर आ गया है इस लेवल पे, जिसमें इनेम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस मैनेजमेंट, ये तीनों जो है इसी एक टेबल के अंदर कंपोजिट किए। अब इसके अंदर जो जॉन स्मिथ है वो एक्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वाई है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे जेड है। तो क्या करा जॉन स्मिथ जो है वो सी लैंग्वेज को भी जो है वो इसके पास नॉलेज है, और ओरेकल को भी इसको पता है, और जॉन स्मिथ जो है इसको DB2 भी पता है। अब DB2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है दूसरी रो रिपीट होगी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू भी रिपीट हो रही है। सेम में अगर जॉन स्मिथ को सी प्लस प्लस आती है तो फिर उसको ओरेकल भी आती है और उसको DB2 भी आता है। ये डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और जो मारिया ब्राउन है उसको प्रोलॉग आती है और मारिया ब्राउन को जावा आती है, लेकिन इससे करस्पॉन्डिंग जेड की जो वैल्यू है वो सेम है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई प्राइम और जेड प्राइम का अवेलेबल है, वाई और वाई प्राइम का अवेलेबल है, लेकिन जेड और जेड प्राइम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इन दोनों रोज पे हम चेक नहीं कर सकते। If the sets of non-programming languages and database management system are indeed independent, in particular programming language does not implies database management system, and database management system does not equal to programming language. The table contains redundant data and must be split into the fourth normal form. अब इसी टेबल के अंदर ये वाला फार्मूला हम लगा के देखते हैं। सिर्फ आपको मल्टी डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक फार्मूला याद करना है। क्या कह रहा है कि एक्स मल्टी डिटरमाइंस हलियो 8 बजे आया है बेटा अपना माइक ऑफ कर दे प्लीज। क्लास में हाँ वही है ये पूछी हुई है तो तमाम बेहतरीन दैट हैज X multi determines Y implies that we have 4 rows। कौन सी रोज होनी चाहिए?
x, y, z। स्क्रीन शेयर क्यों? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सेकंड। ठीक है, अब शेयर हो रही है। यस सर। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, कॉमा x, कॉमा y प्राइम, कॉमा z प्राइम। अगर ये दोनों रोज एग्जिस्ट करती हों तो हमारे पास ये दोनों रोज भी होने चाहिए। कौन सी रोज होने चाहिए? x, कॉमा y प्राइम z और x, कॉमा y z प्राइम। अगर हमारे पास ये दोनों रोज एग्जिस्ट करती हो तो हमारे पास ये दोनों रोज भी एग्जिस्ट करती होनी चाहिए। अब उस टेबल के अंदर जॉन स्मिथ जो है हम x कंसीडर कर रहे हैं जॉन स्मिथ को, y कंसीडर कर रहे हैं हम सी लैंग्वेज को, y प्राइम हम कंसीडर कर रहे हैं सी प्लस प्लस को, z कंसीडर कर रहे हैं हम ओरेकल को, और z प्राइम हम कंसीडर कर रहे हैं db2 को। ठीक है, तो इसके अंदर x क्या है? हमारा जॉन स्मिथ है, और y क्या है? सी लैंग्वेज, और z क्या है? ओरेकल। ठीक है, और ये वाली जॉन स्मिथ, y प्राइम, सी प्लस प्लस और z प्राइम db2। अगर ये दोनों रोज एग्जिस्ट करती हो, अगर हम इसको कहें ये वाली रो XYZ है, ये वाली जो रो है वो है x, y प्राइम और z प्राइम, तो हमारे पास ये रोज भी होनी चाहिए। इसमें रोज में क्या होगा? जॉन स्मिथ, x की वैल्यू सेम रहेगी, y प्राइम की वैल्यू क्या है? सी प्लस प्लस, और z की वैल्यू क्या है? ओरेकल। और x की वैल्यू सेम है जॉन स्मिथ, y की वैल्यू जो है वो है सी प्लस सी, और z प्राइम की वैल्यू है db2। तो यहाँ पे जॉन स्मिथ सी और ओरेकल, जॉन स्मिथ सी प्लस प्लस और db2। तो हमें क्या करनी है? y की वैल्यू स्वैप करनी है, यानी कि यहाँ पे सी प्लस प्लस रख देनी है y प्राइम, और यहाँ पे सी प्लस की जगह सी रख देंगे y और z प्राइम। तो ये जो दो रोज अगर एग्जिस्ट करती हो तो ये दोनों रोज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वेरीफाई हो जाएगी। अगर वो वेरीफाई होती है तो फिर हम इसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? जिस तरह मैंने अभी बताया, जॉन स्मिथ सी और ओरेकल यहाँ पे अवेलेबल है, और जॉन स्मिथ सी प्लस प्लस और db2, यानी y प्राइम और z प्राइम दोनों अवेलेबल है। अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो जॉन स्मिथ सी प्लस प्लस और ओरेकल होने चाहिए, और जॉन स्मिथ सी और db2, यानी ये चारों रोज इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं अगर जॉन स्मिथ मल्टी डिटरमाइंस y और z। यहाँ पे मारिया ब्राउन में यहाँ पे z प्राइम एग्जिस्ट करते नहीं है, तो इस दोनों रोज पे हम उसको चेक नहीं कर सकते, तो उसको हम छोड़ देंगे। अगर इन चारों रोज के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन पेयर बन रहा है
उस पे ये चीज डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो हम इस टेबल को दो टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे ईनेम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे ईनेम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि यहाँ पे जो ईनेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीबीएमएस ये दो रोज ये हो जाएंगी, ईनेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीबीएमएस ये दो रोज ये एग्जिस्ट करती हैं। ये दो टेबल्स अलग हो जाएंगे और ये दो टेबल्स अलग हो जाएंगे। ये मैंने शायद स्लाइड यहाँ पे नहीं बनाई। तो हमारे पास दो टेबल्स हो जाएंगे, एक ईनेम एक टेबल हो जाएगा ईनेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा टेबल हो जाएगा ईनेम और डीबीएमएस। तो सिर्फ ये हमारा फार्मूला है, अगर ये इम्प्लाई होता है तो हम इसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये इम्प्लाई नहीं होता तो हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसके लिए क्या है कि हमारे पास जो टेबल है उसकी जो की है वो दोनों कंपोजिट की होगी, कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 2 कॉलम्स। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। स्टूडेंट का, मॉड्यूल का और हॉबी का। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल डिपेंडेंसी x multi-determines y holds in R if whenever two tuples of R agree in the value of x, x, y, z, pairwise disjoint subset of R x, y, z। disjoint मतलब y प्राइम z प्राइम हमारे पास अलग हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट और मॉड्यूल के हवाले से हमें चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करना। अब स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पे हम x रखें, y की वैल्यू यहाँ पे हम जो है वो मॉड्यूल रखें, फिर देखेंगे वो चेक होता है या नहीं होता। अब जॉन पास्कल और तो जो है हम वर्ड के अंदर मैं कोशिश करता हूँ उसको ओपन करूं। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल डिपेंडेंसी का फॉर्मूला है। दूसरा एग्जांपल, जॉन पास्कल यानी कि y की वैल्यू और म्यूजिक z की वैल्यू, दूसरी वैल्यू जॉन y प्राइम यानी पास्कल की जगह दूसरी वैल्यू, डेटाबेसेस कामा z प्राइम यानी म्यूजिक की जगह दूसरी वैल्यू जॉगिंग। x की वैल्यू सेम या y और z, x की वैल्यू सेम y प्राइम z प्राइम, अगर ये होंगी तो हमें दो रोज होनी चाहिए दूसरी भी जिसमें हम y की वैल्यू स्वैप कर दें। यानी यहाँ पास्कल की जगह हम डेटाबेस रख दें और डेटाबेस की जगह हम पास्कल रख दें, यानी y की वैल्यू स्वैप। तो ये दोनों रोज भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो जॉन डेटाबेस म्यूजिक एग्जिस्ट करता है, जॉन डेटाबेस म्यूजिक जो है ये एग्जिस्ट करता है। जॉन पास्कल और जोगिंग, जॉन पास्कल और जोगिंग ये भी एग्जिस्ट करता है। ये जो चारों रोज है, जॉन पास्कल म्यूजिक, जॉन पास्कल जोगिंग, जॉन डेटाबेस म्यूजिक और जॉन डेटाबेस जोगिंग, ये चारों रोज जो है इनके ऊपर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज वेरीफाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप नहीं होंगे, हमें इन सारे रोज के हवाले से चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब यहाँ पे जॉन जावा म्यूजिक अवेलेबल है, तो जॉन जावा म्यूजिक को हम इस पास्कल के साथ मैच करेंगे, फिर जॉन जावा जॉगिंग को डेटाबेसेस के साथ करेंगे। फिर जो है हमें एक यहाँ पे ये दिख रहा है जेनी डेटाबेस और म्यूजिक। जेनी के सामने जो है यहाँ पे C++ भी अवेलेबल है
और डेटाबेस भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे जो z की वैल्यू है वो z प्राइम है ही नहीं, तो जेनी को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, यानी ये जेनी का जो x है इसके ऊपर मल्टीपल डिपेंडेंसी हम चेक नहीं कर सकते। दूसरी चीज मेरी, मेरी के सामने मॉड्यूल जो है वो C++ है, y की वैल्यू यहाँ पे भी C++ है, यहाँ पे भी C++, यानी कि x मल्टी डिटरमाइंस y एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो मेरी है और जेनी है ये दोनों जो है ये आउट ऑफ द चेकिंग क्राइटेरिया है, यहाँ पे हम इनके ऊपर चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें y प्राइम और z प्राइम की वैल्यू और y और z की वैल्यू हमें मिल ही नहीं रही। सिर्फ जॉन के हवाले से हमें ये चीज मिल रही है एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्राइम और जेड प्राइम, ठीक है। जो हम लास्ट से दूसरा चेक करेंगे जॉन जावा म्यूजिक के हवाले से, जिसमें जॉन जावा म्यूजिक और जॉन डेटाबेस जॉगिंग, इसी को हम कंपेयर करते हैं दूसरी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में। तो हमारे पास जावा जो है y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी और डेटाबेस आ जाएगा। तो हमारे पास सॉरी कंट्रोल जेड जॉन जावा जॉन जावा म्यूजिक और जॉन डेटाबेस जॉगिंग हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास जॉन डेटाबेस म्यूजिक एग्जिस्ट करना चाहिए, जॉन डेटाबेस म्यूजिक एग्जिस्ट करता है, और जॉन जावा जॉगिंग भी एग्जिस्ट करता है। तो हम इन सारों रोज के लिए मल्टीपल डिपेंडेंसी जो है वेरीफाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों टेबल्स को इस टेबल को हम डिकम्पोज कर देंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट और मॉड्यूल एक टेबल हो जाएगा, स्टूडेंट और हॉबी जो है दूसरा टेबल हो जाएगा। स्टूडेंट और मॉड्यूल जो है ये एक टेबल हो गया, और स्टूडेंट और हॉबी जो है दूसरा टेबल हो गया। अब इसमें क्या है, हमारी जो रिडंडेंसी है वो खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर जॉन पास्कल के साथ ये म्यूजिक, जॉन पास्कल के साथ फिर जॉगिंग, ये पास्कल यहाँ पर रिपीट हो रहा है म्यूजिक और जॉगिंग के साथ, फिर दोबारा म्यूजिक और जॉगिंग रिपीट हो रही है इस डेटाबेसेस के साथ, डेटाबेसेस भी रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो है हमारे पास डेटा रिडंडेंसी हो रही है। तो हमें इस रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी जो है वो वेरीफाई करनी पड़ेगी। अगर हम मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी इस पे वेरीफाई हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितनी भी रोज है सबके लिए, सिवाय उनके जिसपे मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी हम चेक ही नहीं कर सकते, अगर वेरीफाई हो रही है तो हम इसको इन दो टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब इसमें आप देखोगे कि जॉन के सामने पास्कल डेटाबेस, जावा, सी प्लस प्लस, जेनी सी प्लस प्लस, जेनी डेटाबेस, इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, और इसके सामने जो है वो हॉबी, म्यूजिक, जॉगिंग, रीडिंग, टेनिस, साइकिलिंग, म्यूजिक, कोई भी हॉबी जो है वो रिपीट नहीं हो रही। अब इस टेबल के अंदर जॉन और म्यूजिक कंबाइन होके कंपोजिट की बन रहा है, इसके अंदर भी जॉन और पास्कल कंबाइन होके जो है वो कंपोजिट की बन रहा है, उसमें रिपीटेशन जो है वो मैक्सिमम इस एक कॉलम की जो है रिपीटेशन हो रही है। इसमें हम फोर्थ नंबर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है जिसको आप जाके जो है वो घर पर टेस्ट कीजिएगा, पर्सन का जिसके अंदर नेम है, कार मॉडल है और कंट्रीज विजिटेड है। आप पॉल को जो है यहाँ पे एक्स के तौर पे कंसिडर कीजिएगा, ऑडी को जो है आप वाई के तौर पे कंसिडर कीजिएगा, और कंट्रीज विजिटेड जो है आप इसको जेड के तौर पे कंसिडर कीजिएगा। फिर आप पॉल प्यूजो वाई प्राइम, और यहाँ पे प्यूजो के सामने कोई एग्जिस्ट नहीं करता, आप रसेल को ले लीजिए, ऑडी को ले लीजिए, यहाँ पे वाई प्राइम ले लीजिए, इसको जेड प्राइम ले लीजिए, फिर आप इसको चेक करें इसको मल्टीपल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अब रियोन जो है इसके सामने ऑडी है, फिएट है, इसके सामने ऑडी और फिएट, ये भी आपके पास अवेलेबल है। तो इस टेबल के ऊपर आप मल्टीपल डिपेंडेंसी चेक कीजिएगा। कैसे चेक करेंगे, पहले आप नेम मल्टी डिटरमाइन कार मॉडल, एक्स की वैल्यू आप वाई ले लें, सॉरी एक्स की वैल्यू आप नेम ले लें और कार मॉडल को वाई ले लें। फिर क्या करें, आप स्विच कर दें, यानी कंट्रीज विजिटेड को आप वाई ले लें और नेम को आप एक्स ले लें, नेम को आप एक्स ले लें, कंट्री विजिटेड को आप वाई ले लें, और जो कार मॉडल इसको आप जेड करके तौर पे कंसीडर करें। फिर आपका कार मॉडल जो है, कार मॉडल जो है इसको आप एक्स को कंसीडर करें, और कंट्रीज विजिटेड जो है आप इसको जो है वाई के तौर पे कंसीडर करें,
और जो नेम है इसको आप एक्स के तौर पर कंसिडर करें। तो इन तीनों कॉम्बिनेशंस को आप मिला के इस पे चेक करें कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसका जो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन भी जो है मैंने इस लेक्चर के अंदर जो है वो दे दिया है। तो आप इसको प्रेजेंटेशन को देखने से पहले, इसके सोल्यूशन को देखने से पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा कि वेरीफाई होता है या नहीं होता, फिर आप इसके सोल्यूशन को चेक कीजिएगा। फिर अगेन एक और एक्सरसाइज है आईडी, हॉबी और लैंग्वेज स्पीक्स। इसके ऊपर भी आप मल्टीपल डिपेंडेंसी जो है वो आप चेक कीजिएगा और फिर इसको एज असाइनमेंट के तौर पर आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। मैं इसको असाइनमेंट में की तरह बना के मैं आपको फिर ईमेल कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। अभी इसके बाद जो है डी नॉर्मलाइजेशन है। यहां तक मल्टीपल डिपेंडेंसी में और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज गो अहेड। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज अभी पूछ लें। बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए हम मूव करते हैं जो है वो इसके एंड टॉपिक की तरफ, डीनॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो डीनॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसके रिवर्स प्रोसेस को हम डीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यानी कि अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ हम आ चुके हैं, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ, तो हम वापस बैक ट्रैक करें, यानी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से वापस 3NF तक जाएं, फिर वापस सेकंड NF तक जाएं, फिर वापस फर्स्ट NF तक जाएं, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया। अब डीनॉर्मलाइजेशन हम करते क्यों हैं? इसका रीजन जो है साइंस में अवेलेबल है। पहले तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? क्रिएशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन इज इंपॉर्टेंट डेटाबेस डिजाइन गोल। Processing requirements should also be a goal. If tables decompose to conform to the normalization requirements, number of database table expand. यानी कि नॉर्मलाइजेशन हम जैसे ही, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर नहीं होनी मेरे से, ठीक है। हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म इसलिए करते हैं ताकि हमारी डेटा रिडंडेंसी खत्म हो, डेटा एनोमलीज हमारी खत्म हो। और नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, हमारे टेबल्स डिकम्पोज होते भी जाते हैं, यानी कि सर नंबर। यस सर थोड़ो आहिस्ता ॻाल्हायो। अच्छा, आवाज वधीक तेज पहुंचे जा? न तेज न, मतलब हू पियो अचे, मतलब तकड़ो तकड़ो डिस्टॉर्ट हो पियो रहा है, अचे। आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। जी सर, अच्छा, मतलब तकड़ो तकड़ो न ॻाल्हायो, थोड़ो आहिस्ता आहिस्ता ॻाल्हायो, मतलब तकड़ो न ॻाल्हायो। अंडरस्टैंड दैट। बेसिकली वो आइडियाज जहन में आते जा रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली वो चीज बोलता हुआ जा रहा है। अभी हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जूम पे, तो दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएगा प्लीज। तो फिर मैं दोबारा से इसको रिस्टार्ट करता हूँ। हमें फर्स्ट एनएफ से सेकंड एनएफ की तरफ कन्वर्ट करना है और उसको थर्ड एनएफ और फोर्थ एनएफ की तरफ। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अननॉर्मलाइज का मतलब ये है कि हमें जो है डेटा को नॉर्मलाइज करना ही नहीं है। जैसे कि जैसे डेटा हमारे पास टेबल शुरू में हमने खुद बनाया पेपर के ऊपर, उसको वैसा ही रखना है, यानी अननॉर्मलाइज, यानी कि उसको नॉर्मलाइज नहीं करना। डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं उसको आगे जाके, लेकिन हम समझ रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा टेबल्स बन रहे हैं, ये ज्वाइनिंग में मसला करेगा, तो हम वापस उसको डीनॉर्मलाइज करते हैं, यानी कि उसको बैक ट्रैक करके यार फोर्थ एनएफ छोड़ दो, 3NF तक रुक जाओ या सेकंड एनएफ तक रुक जाओ। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन, कन्वर्जन टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अननॉर्मलाइज्ड यानी कि टेबल की नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी ही नहीं है। डीनॉर्मलाइज यानी कि वापस रिवर्स इंजीनियर करना, वापस बैक ट्रैक करना, ताकि जो है हमारी जो डेटाबेस की एफिशिएंसी जो है वो खराब ना हो। तो ये डेटाबेस की डिजाइन, जब डेटाबेस हम डिजाइन करते हैं तो उसकी डिजाइनिंग के वक्त हम ये चीज डिसीजन लेते हैं। तभी मैं कहता हूं कि जैसे ही अगर मैं स्टूडेंट का डेटाबेस बनाने के लिए कह दूं, आप में से 3 ग्रुप्स बना दो, तो स्टूडेंट का डेटाबेस बनाने के लिए चाहे रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेम आपको दे दी जाए, लेकिन उस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप तीनों ग्रुप का जो डेटाबेस की डिजाइन है वो मुख्तलिफ होगी।
हर किसी के कॉलम्स के नाम मुख्तलिफ होंगे, टेबल्स में नंबर ऑफ प्राइमरी की मुख्तलिफ होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स मुख्तलिफ होंगे, जॉइंट्स मुख्तलिफ होंगे और टोटल नंबर ऑफ टेबल्स मुख्तलिफ होंगे। वो मुख्तलिफ क्यों होंगे? क्यों? हर किसी के देखने का नजरिया अलग है। बेसिक रूल्स आपको बता दिए गए हैं, लेकिन इन द एंड एक डेटाबेस डिजाइनर का जो एक कॉल है, एक्सपीरियंस डेटाबेस डिजाइनर का, वो ये देखते हुए डिसीजन लेगा कि हमारा डेटाबेस बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म किस सूरत में कर सकता है। क्या वो 3NF में कर सकता है? क्या वो 4NF में कर सकता है? क्या वो 2NF में कर सकता है? या क्या वो 1st NF में कर सकता है? या क्या वो अननॉर्मलाइज्ड वे में कर सकता है? वो डेटाबेस डिजाइनर की कॉल होती है, वो अपने डिजाइन से डिसाइड करेगा। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, एक शॉर्टकट बता दिया कि हम अननॉर्मलाइज्ड डेटा कब रखते हैं। हम तब रखते हैं जब हमारा डेटा बहुत छोटा हो। जब डेटाबेस बहुत छोटा है तो हमें नॉर्मलाइज कि हमें जो है करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा ही बहुत कम है। तो रिडंडेंसी होगी, डेटा कॉपी होगा, मल्टीपल डेटा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटाबेस डेटा की साइज बहुत कम है। तो हमें नॉर्मलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ज्वाइनिंग होगी नहीं, डेटाबेस परफॉर्मेंस खराब होगी नहीं, वो बेहतर रहेगी, चाहे डेटा रिपीट होता रहे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमारा डेटा बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उस जब डेटा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डेटा रिपीट होगा। डेटा रिपीट होगा तो उसमें रिडंडेंसी बढ़ेगी, उसमें सर्चिंग मुश्किल हो जाएगी, एक क्यूरी हम लगा के बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, इंतजार करते रहेंगे यार कब वो जो है वो अपनी जो रिजल्ट देगा। तो उससे बेहतर है कि हम उसको नॉर्मलाइज नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करें, उसको 3NF 4NF का उसको कन्वर्ट कर दें। तो वो जो है डेटाबेस की डिजाइन, ये जो है मैं डिसीजन इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डेटाबेस को बनाने से पहले ये हमें सोचना पड़ेगा कि डेटाबेस को किस लेवल तक आके हमें जो है वो छोड़ना है। So it is completely a creative call from the database designer. ठीक है guys, so if there's any question please go ahead. बट कोई क्वेश्चन है? वरना No, sir. नहीं, वरना हम लैब की तरफ जो है मूव हो जाए फिर।